Good morning, students. Hello, myself Shekhar Salunkhe. I am a lecturer in mechanical engineering at Government Polytechnic, Dhule. As I already discussed about the electric discharge machining and details about that machining process. Yes, we are in the non-conventional machining process, means advanced machining processes. Now, the second type of advanced machining process is a wire cut electric discharge machining. Okay, let's start with this topic in detail. Uh, about this topic, at the end of this topic, students will able to describe the working principle of wire cut EDM. Yes, EDM stands for electric discharge machining, and now we are using a wire method. Okay, and all the construction of that process. After that, describe advantages, limitations, applications of wire cut EDM. Select a wire cut EDM method for given job with justification. Yes, students can able to do that things. Okay, that's all about this unit, and we are going to learn that things. Okay, content for this PPT. इस लेक्चर में हम ये सारे कंटेंट्स देखने वाले हैं, जैसे introduction of wire cut EDM, after that working principle of wire cut EDM, then setup or construction of wire cut EDM. There is a printing mistake, just mention as a wire, but you can call to that wire cut EDM. Okay, after that controlling parameters of this process, then advantages, disadvantages, and finally applications of EDM, wire cut EDM. Okay, wire cut electric discharge machining method. Let's start with the introduction of this method. Yes, as you can see the diagram also, but let me discuss about the introduction. Fundamental principle of metal removal in wire cut EDM is the same as that of EDM. Yes, जैसे हमने पहले लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग को पढ़ा है, उसके बाद हम वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स प्रोवाइड किया है, यस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोसेस, इट एम्प्लॉयज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रिमूवल मेटल from the workpiece without touching it. Okay, the process can be used only when the workpiece to be cut has through hole in it, or the cut is to be taken from outer edge into the workpiece as shown in figure. Yes, we are using wire for the cutting operation or metal removal operation. Yes, as you can see in the diagram, green color diagram, there is a side edge cut from the start from the edge, or we need to drill into the workpiece from the starting point of wire. Okay, means we can immerse that, insert that wire through that hole and start the process for cutting. It uses a wire of 0.3 mm diameter as a tool. Okay, वायर डायमीटर कितना दिया है, 0.3 mm डायमीटर जो होगा डायमेंशन वायर का. The wire or electrode is made up of copper or tungsten. Yes, wire का मटेरियल हमको दिया गया है copper and tungsten. Yes, you need to remember that points, that specific points about this process, because of in the examination it may be chances to ask that things. After that, deionized water is used as a dielectric fluid. Yes, same like electric discharge machining. Okay, now let's move ahead. Let's talk about the working principle of wire cut EDM. WEDM. There is a short form for that name process, name as a process, WEDM. Okay. WEDM works on the principle that the heat energy generated by spark is used to remove the material from workpiece. Yes, जस्ट लाइक ईडीएम, जो हमने लास्ट लेक्चर में ईडीएम को स्टडी किया है, उसके बाद हम वायर कट ईडीएम को देख रहे हैं. यहाँ पे जस्ट अरेंजमेंट चेंज हुआ है. वी आर यूजिंग टूल
वायर एज अ टूल. ओके, तो 0.3 mm डायमीटर का वायर हम यूज करने वाले हैं एज अ इलेक्ट्रोड और टूल. A constant gap of 0.5 mm is maintained between the wire and workpiece with the help of control system as shown in figure. Okay, the wire continuously moves at the constant, just a minute. Yes, there is a wire we are using for cutting operation. The wire continuously moves at the constant speed through the workpiece. Yes, the movement of wire we can do through the servo control system. Okay, and there is a movement obtained while cutting operation performs as per the desired dimension or shape. Okay, the dielectric fluid is constantly flushed into that area of machining. Yes, there is a nozzle given for the dielectric fluid, and because of that we can flush out the workpiece material from this gap. Okay, now working principle of continue on working principle. When the machine tool is switched on, sparks are generated between the tool and workpiece. Okay, after that spark comes in contact with the dielectric fluid in the gap. The fluid gets ionized. It allows the current to flow between the tool and workpiece. Yes, वर्कपीस और टूल के बीच में हमें स्पार्क मिलने वाला है, और उस स्पार्क के वजह से हीट जनरेशन हो रहा है. यस, जैसे हमने ईडीएम में देखा. ओके, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द स्पार्किंग प्रोसेस रिजल्ट्स इन द मेल्टिंग ऑफ वर्कपीस. यस, मटेरियल को मेल्ट कर रहे हैं हम, तो इस तरह से मटेरियल रिमूवल ऑपरेशन हमें मिल रहा है, एंड परफेक्ट शेप एंड साइज में हमें मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है. ओके, इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिजायर्ड शेप ऑन द वर्क पीस टेबल, मोशंस आर कंट्रोल्ड बाय पोजिशनिंग यूनिट. यस, जैसे हमने ईडीएम में देखा, वी आर यूजिंग अ सर्वो कंट्रोल सिस्टम फॉर द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल और इलेक्ट्रोड. ओके, द सेम लाइक वी कैन मूव अ टेबल, मीन्स वर्क पीस को मूव कर रहे हैं हम अब, जस्ट रिवर्स. वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड को मूव कर रहे थे फॉर मेंटेनिंग द गैप ईडीएम में. ओके, और वायर कट ईडीएम में क्या कर रहे हैं हम, जैसे ही टेबल मूवमेंट के साथ हम वो मोशन ले रहे हैं और मूवमेंट ले रहे हैं, देन in order to create the desired shape on the workpiece, the table motions are controlled by positioning unit or servo control unit. Yes, we can also move by manual method. Yes, you can see the diagram for setup. Take a screenshot and draw this diagram for your homework. Okay, the basic elements of WEDM is, first one is power supply system, dielectric fluid system, then CNC control system, and last one is wire drive system. You can see the list of these major components of WEDM. Method is same like a EDM, but there is a setup change in WEDM. Let's start with the quiz set 1. Dash dash is used for the movement of work table. Yes, what unit we are using for the movement of work table in this method? You can give the answer CNC control unit, means servo control or CNC control. We are giving codes or tool path for that table. Okay. Second, spark generated through dash dash energy domain used in WEDM. Yes, which domain? The same method we are using thermal. Okay, thermal energy domain is used for WEDM. Last question for quiz set 1. In WEDM, tool is in the form of wire. Is that true, students? Yes, tool is in the form of wire is true. Answer is true. Okay, let's move ahead. Controlling parameters of WEDM. What are the controlling parameters of WEDM? Let's start with this topic for controlling parameters. First one is discharge current. Okay, uh, these parameters gives the somewhat values. Okay, then you can study these all the points or controlling parameters for obtaining the perfect machining of with the help of this method, or you can get the perfect
accuracy of product by studying these controlling parameters. Okay, uh, one by one we will see these controlling parameters. Let's start. Wire cut EDM controlling parameters. Discharge current. Okay, material removal rate increases with the current. That is the main thing in discharge current. जैसे ही हम करंट को बढ़ाएंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट भी बढ़ जाएगा. ओके, पल्स ड्यूरेशन के बारे में अगर बात करेंगे, सेकंड कंट्रोलिंग पैरामीटर जो है, इंक्रीज इन द पल्स ड्यूरेशन रिजल्ट्स इन द मोर रिमूवल ऑफ मटेरियल. यहाँ पे हमें जैसे ही पल्स ड्यूरेशन भी बढ़ा रहे हैं तो मटेरियल रिमूवल भी बढ़ रहा है हमारा. इंक्रीजिंग द पल्स ड्यूरेशन रिजल्ट्स इन द रिड्यूस द सरफेस रफनेस. जैसे ही हम पल्स ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं तो सरफेस रफनेस भी रिड्यूस हो रहा है. ये 2 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है पल्स ड्यूरेशन में. ओके, देन पल्स फ्रिक्वेंसी. पल्स फ्रिक्वेंसी में अगर जाते हैं हम तो मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज विद द पल्स फ्रिक्वेंसी. यस, अब हम फ्रिक्वेंसी के बारे में थर्ड पॉइंट, ओके, थर्ड कंट्रोलिंग पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं. तो पल्स फ्रिक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज तक हम रखने वाले हैं. यस, आपको ध्यान में रखना है जो भी वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, डिस्चार्ज करंट कितना होगा, वायर उसके वैल्यू मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया. द वायर बीइंग स्मॉल कैनॉट कैरी द करंट मोर देन 30 एम्पियर. मीन्स फर्स्ट पॉइंट जो है डिस्चार्ज करंट में, वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 30 एम्पियर से ज़्यादा करंट कैरी नहीं हो सकता. तो वहाँ का रेंज आपको पता चल गया है करंट का 30 एम्पियर्स. ओके, देन अबाउट पल्स ड्यूरेशन, जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ जाएगा. देन पल्स फ्रिक्वेंसी, थर्ड पॉइंट के बारे में, मटेरियल रिमूवल रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो पल्स फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है. ओके, और कितना फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करने वाले हैं, 1 मेगाहर्ट्ज. ओके, दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस द क्रेटर साइज ऑफ बेटर सरफेस फिनिश. क्रेटर साइज मीन्स यूर जो मटेरियल रिमूव होने वाला है या हो रहा है वहाँ पे आफ्टर स्पार्क जनरेशन, तो वो साइज़ थोड़ा सा स्मूथ रहेगा. और उसके साथ ही हमें वहाँ का जो सरफेस फिनिशिंग होगा कटिंग एरिया का, ओके, तो वो सरफेस फिनिशिंग भी बेटर मिलने वाला है. लास्ट नहीं, सॉरी, तो कटिंग रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो कटिंग रेट में द वायर स्पीड इज द रेंज ऑफ कितना होगा. कटिंग रेट मीन्स वायर को कैसे मूव करेंगे हम, कितने स्पीड से मूव करेंगे. वह यहाँ पे वायर स्पीड करके हमने बात की है, तो वो हमारा होगा 2.5 टू 150 mm पर सेकंड. ओके, वायर कटिंग स्पीड. देन एवरेज मशीनिंग रेट कितना होगा वो भी मैं वैल्यूज में बात करूंगा. 10 to 15 mm² पर मिनट इज जनरली अचीव. कितना, 10 से 15 mm² पर मिनट, ये हमारा एवरेज मशीनिंग रेट होगा. देन वायर टेंशन के बारे में बात करते हैं जो कंट्रोलिंग पैरामीटर है. द एप्रोप्रिएट वायर टेंशन शुड बी मेंटेन इन ऑर्डर टू कीप द वायर स्ट्रेट. यस, वायर को टेंशन परफेक्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमें परफेक्ट मशीनिंग मिलेगा. वायर अगर लूज होगा तो मशीनिंग परफेक्ट नहीं होगा, डिसऑर्डर में होगा, वो पूरा डायमेंशन चेंज कर देगा. सो वो हमें ध्यान देना आहे की वायर को भी एक टेन्शन, मराठीमध्ये आपण म्हणणार त्याला ताण द्यावा लागेल. ओके, तर अशा पद्धतीने वायर टेन्शन पण गरजेचं आहे. ठीक आहे, किती देणार टेन्शन, 50% ते 60% ऑफ इट्स टेन्साईल स्ट्रेंथ, 50 to 60% ऑफ इट्स टेन्साईल स्ट्रेंथ. ओके, देन लास्ट कंट्रोलिंग पैरामीटर, डायइलेक्ट्रिक फ्लो. A nozzle is employed to inject the dielectric fluid in the machining area. ओके, एक डायइलेक्ट्रिक फ्लोसाठी आपण एक काय करणार, नोझल प्रोव्हाइड करणार आहे, कारण त्या ठिकाणी तो फ्लशिंग एरिया आपल्याला कव्हर करता आला पाहिजे, जेणेकरून ते मटेरियल रिमूव्हल आपल्याला इझिली करता येईल, फ्लश करता येईल त्या ठिकाणी. द सप्लाय ऑफ डायइलेक्ट्रिक शुड बी कंटिन्युअस अँड इनफ टू अलाव द स्पार्किंग. बघा, तो कंटिन्युअस फ्लो असणं गरजेचं आहे डायइलेक्ट्रिक फ्लुइडचा, कारण आपल्याला कंटिन्युअस फ्लो असेल तर स्पार्क ऑपरेशन पण झालं पाहिजे, कारण डायइलेक्ट्रिक फ्लुइड स्पेशली आपण स्पार्क अचीव करून घेण्यासाठी यूज करतोय, हे पण विसरायचं नाही आहे. जसं आपण इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग मेथडमध्ये सगळं स्टडी केलं आहे, तर सेम वर्किंग प्रिन्सिपलवर आपण काम करतोय, फक्त सेटअप चेंज झाला आहे आणि
वायर यूज करतोय कटिंग ऑपरेशन ॲज अ इलेक्ट्रोड. ओके, ठीक आहे. तर these are the controlling parameters. That's all about the controlling parameters of WEDM. Now let's move ahead with the advantages of wire cut EDM. You can see what are the advantages list as shown in the slide. Process is a burr free. Yes, प्रोसेस कशी आहे, burr free मीन्स त्या ठिकाणी सरफेस फिनिशिंग पण चांगली मिळणार आहे आणि burr free प्रोसेस आहे. थिन फ्रॅगाईल सेक्शन्स इझिली मशीन विदाउट डिफॉर्मिंग. ओके, एक डिफॉर्मेशन रेंज जी आहे ती चांगल्या पद्धतीने असणार आहे. तुम्हाला डिस्टॉर्टेड एरिया मिळणार नाही मशीनिंग नंतर. एक परफेक्ट शार्प कॉर्नर्स मिळणार आहेत ड्यू टू द वायर कट. त्यामुळे फ्रॅगल सेक्शन्स इझिली मशीन, असे काही सेक्शन्स असतील तर ते आपण इझिली मशीन करू शकतो एक डिफॉर्मेशनमध्ये जास्त चेंज न होता. मीन्स चेंज इन लेंथ. ओके, चेंज इन डायमेन्शन, दॅट्स कॉल्ड दॅट इज नोन ॲज डिफॉर्मेशन. प्रोसेस इज ॲटोमॅटिक. सर्वो मेकॅनिझम ॲडव्हान्सेस द इलेक्ट्रोड इन टू द वर्क ॲज अ मेटल रिमूव्ह. प्रोसेस काय आहे, ऑटोमॅटिक म्हणजे एक CNC कंट्रोल थ्रू आपण करणार आहोत. सो दॅट्स वाय वी आर getting the perfect shape as per the desired dimensions. Okay, now just a minute. Actually we are talking about the advantages. The part produced are burr free, then sharp angles we can cut with this method, high degree of accuracy. Yes, तसं तुम्ही निराळी प्रकाशनाच्या पुस्तकातनं पण सर्व ॲडव्हान्टेजेस स्टडी करू शकणार आहात डिटेलमध्ये. तर डिसॲडव्हान्टेजेसबद्दल जर बोलणार तर वी कॅनॉट रियूज द वायर, हा महत्त्वाचा डिसॲडव्हान्टेजेस असणार आहे. वायर रियूज करता येणार नाही. वन टाईम जर मटेरियल कट त्या वायरने झालेलं आहे, ती सर्क्युलेट झाली आहे, तर त्यानुसार ती वायर आपल्याला यूज करता येणार नाही. आणि सेटअपमध्ये जर डिस्कस केलं ना, जो वायर कट EDMचा सेटअप आहे, बघा तुम्ही ह्या ॲप्लिकेशनच्या स्लाईडमध्ये बघू शकतात. वायर त्या ठिकाणी पास केली आहे. इंटरनल गियर थ्रेड्स पण आपण मॅन्युफॅक्चर करू शकतो. हम इंटरनल गियर्स भी बना सकते हैं बाद में. चाहे जैसा शेप हो वो डिज़ाइन के थ्रू, हम CNC कंट्रोल के थ्रू, जे कंप्यूटर कंट्रोल कोडिंग सिस्टम से हम ये पाथ, वर्क टेबल का पाथ डिसाइड करने वाले हैं और जैसा शेप है उस तरह से कट ऑब्टेन करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपका अरेंजमेंट आप डायग्राम पे देख सकते हो, एक रोलर होगा, स्पूल होगा, वायर को फीड करेगा और एक वाउंड करेगा, फिर से टेकअप करेगा. मीन्स एक तरफ से वो न्यू वायर हमें मिलने वाली है और दूसरी तरफ वो वायर फिर से वाउंडिंग होने वाली है. यूज्ड एज अ यूज्ड वायर वाउंडिंग होगा वो. ओके, तो ये अरेंजमेंट सेटअप में आपको स्टडी करना है. तो ईजिली जस्ट वो DC सप्लाई ऑन कर देंगे, सेम लाइक EDM, और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को यूज़ कर रहे हैं, स्पार्किंग ऑपरेशन मिल रहा है और हीट थ्रू हीट हम एनर्जी को डेवलप करके स्पार्क जनरेट करके हम मटेरियल रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वायर. ओके, तो वायर अरेंजमेंट भी आपको ध्यान में आ गया, जैसे प्रीवियस डायग्राम्स में भी आपने देखा होगा. ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस, कहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ करते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ WEDM, पंचेस एंड डाइज यूज्ड इन प्रेस टूल कैन बी मेड. देखो, जो पंच डाइज टूल रूम्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि वो बहुत हार्डर होते हैं. यस, because of that we are obtaining the desired shapes with the help of punch and dies. Okay, dies are cavities. Yes, we can get the different shapes, but डाइज प्रॉपर्टीज में वो बहुत हार्ड और स्ट्रेंथन होना ज़रूरी है. तो इसीलिए वो उतने हार्ड पार्ट्स को अगर मशीन करना है, उस तरह के डाइज को हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो हमें वायर कट EDM की ज़रूरत है. यस, मीन्स एडवांस मशीनिंग मेथड की ज़रूरत है. there is a use of WEDM for manufacturing of punches and dies. Now next application एरिया में अगर जाते हैं तो मोल्ड एंड डाइज मीन्स सेम एरिया है वो भी. ठीक है, कॉम्प्लेक्स काउंटर्स को भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे वहाँ पे देखो इंटरनल गियर्स को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वायर कट. ओके,
आफ्टर दैट सुपीरियर क्वालिटी एज कैन बी ऑब्टेन। यहाँ पे मैंने पहले भी बात की है कि ड्यू टू द वायर एंड स्पार्किंग एक्शन वी आर गेटिंग द परफेक्ट स्मूथ सरफेस फिनिश। मटेरियल रिमूवल रेट भी अच्छा मिल रहा है और एक्यूरेसी भी ऑब्टेन कर रहे हैं। तो सरफेस क्वालिटी भी एक एज हम परफेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि शार्प कॉर्नर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीनिंग मेथड। ओके, नाउ क्विज सेट 2 को इस तरह से एप्लीकेशन एरिया तक हमने वायर कट ईडीएम को देखा है। तो क्विज सेट 2 हम देखते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। वायर कट ईडीएम मेथड में वायर टेंशन इज अबाउट हाउ मच परसेंटेज और इट्स अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, कितना होगा? तो 50% टू 60% आपका आंसर होना ज़रूरी है। आफ्टर दैट डैश डैश इज यूज टू फीड द वायर इन डब्ल्यूईडीएम। यस, क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट है वायर को फीडअप करने में? और तो वायर ड्राइव सिस्टम है, वो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वायर ड्राइव सिस्टम में क्या है? टू फीड द फ्रेश वायर फॉर मशीनिंग एंड टू टेक अप द वायर। दो हम ऐसे मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं कि एक फीडअप कर रहा है और दूसरा वाउंडिंग कर रहा है, फिर से जमा कर ले रहा है। ओके, मीन्स यूज वायर को। तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा आपका वायर कट में, तो उसको हम वायर ड्राइव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन होगा, फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यूईडीएम। तो पंच मेकिंग, डाई मेकिंग, कॉम्प्लेक्स कटिंग और ऑल ऑफ दिस, क्या एप्लीकेशन एरिया हमने अभी अभी डिस्कस किया है लेटेस्ट। तो आंसर आपका क्या होगा? तो जो ए बी सी तीनों ऑप्शन है, तीनों को बनाने में हम एप्लीकेशंस एरिया में हम यूज कर रहे हैं डब्ल्यूडीएम को। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ थैंक यू। Keep watching for the further videos of Unit 1 नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। अब हमने सेकंड टाइप को स्टडी किया है जो डब्ल्यू का था। ठीक है गाइज, MSBT ने सिलेबस में जो हमें इंक्लूड किया है ऑल द एडवांस मशीनिंग मेथड्स, तो वो हम वन बाय वन ऐसे ही देखते जाएंगे। यूनिट 1 हमारा रनिंग है अभी, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। अगर ये मेथड आपको परफेक्टली अंडरस्टैंड हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।